جی وشنو بھائی کیسے ہیں؟ بہتر. نمشکار احمد رجا جی, میری آواز کیسے آ رہی ہیں ہے کیا؟ آپ؟ جی بہتر, آ رہی ہے جناب. کیسے ہیں آپ؟ بڑھیا. اچھا, پچھلے کچھ ہی دنوں سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, تو مجھے بہت زیادہ جانکاری اسلام کو لے کر کے نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں ٹھیک ہے 2 جناب. پوائنٹوں پہ بات کرنا چاہوں گا آپ سے. وشنو بھائی ذرا میں آپ کو بتا دوں، آپ آتے ہیں ہر اسٹریم میں تو آپ پوائنٹس پہ ہی بات کرتے ہیں اور اچھی بات ہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. صرف یہ کہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے نا اس میں آپ اگر ہندوازم کو فالو کرتے ہیں تو ہندوازم کی کون سی اچھی بات ہے اس پر اگر آپ چرچا کریں تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ پھر آپ جو بات کریں گے وہ آپ کریں گے اسلام پر کوشچن آنسر یا اسلام کے پوائنٹ. آج کا ٹاپک نہیں ہے وشنو بھائی، میں آپ سے پھر اس بات پہ جو ہے نا क्षमा مانگنا چاہتی ہوں. پھر نہیں, میں سبجیکٹ کے ریلیونٹ ہی بات کروں گا, ادھر ادھر میں جاؤں گا نہیں. اور اگر آپ کو ایسا لگے ہندوازم کہ کی بات کریں گے. نہیں, کمپیئرنگ ہو رہی ہے نا کہ اگر میں اپنے سناتن کو بہتر سمجھتا ہوں تو اس کے پیچھے کیا جی کارن, جی تو میں کیول 2 پوائنٹوں جی کے جی اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں. اور زبردست. جی چونکہ کیشر رجا جی یہاں پہ ہیں اور بہتر جانتے ہیں چیزوں کو, تو میں چاہوں گا کہ 2 چیزیں کلیئر کریں, پھر میں سناتن سے کمپیئر کر کے پھر ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی چیز اگر بہتر ہے تو کیوں بہتر ہے. جی ٹھیک ہے. ایک چیز مجھے اسلام میں بہتر لگتی ہے کہ جو خالق کائنات کا جو کانسیپٹ ہے, جو کریٹر کا جو کانسیپٹ ہے, وہ جی اچھا لگتا ہے مجھ کو جتنا میں نے قرآن کو پڑھا ہے, کہ کسی نے تو اس کریشن کو کی ہے. ہم، تو میرا کوشچن اس کی آج ایک ٹھیک دوسرا اٹھتا ہے کہ آخر اگر کوئی کریٹر ہے, چلو میں نے مان لیا کہ کوئی نہ کوئی ایک کریٹر ہے, ایگریڈ. ہمارے یہاں اپنشدوں میں آتا ہے کہ ایکم برہم جو ہے, برہمم ستیہ جگت متھیا, اور ایک کانسیپٹ آتا ہے کہ ایکم دوتیو ناستی برہمم ستیہ جگت متھیا, ایک میں ہی ہوں دوسرا کوئی نہیں ہے. تو جہاں تک کانسیپٹ کی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی کریٹر ہے اور وہ ایک ہے, اس نے اس کریشن کو کی ہے. دوسرا کوشچن آتا ہے کہ اگر کریٹر ہے, اس نے کریشن کی, تو کریشن کیوں کی ہے. اور اس کے بعد ایک کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ کریشن اگر اس نے کی ہے تو اس کی وجہ کیا تھی, اس نے کیوں کی. جیسے اگر اس نے انسانوں کو بنایا تو کیوں کی. تو میں نے مفتی صاحب سے کوشچن کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. تو کیا خدا جو ہے, اب میں سناتن ورسز اسلام پہ بات کرنا, اور میں اسی پوائنٹ پہ رکوں گا آج. ہم. تو کیا خالق کائنات اپنی عبادت کا بھوکا ہے؟ کیا یہ اس کی کوالٹی ہے؟ ٹھیک. کیا یہ اسلام ایسا ہی کہتا ہے؟ اگر نہیں کہتا تو آپ بتا دیں, اگر کہتا ہے تو آپ مجھے ریفرنس دے دیں. اچھا, پہلے تو ہم اس کو ایک بیسک پرنسپل کے طور پہ طے کر لیتے ہیں. جی کہ جی آپ نے کہا کہ آپ کو بھی اپنے اسکرپچر میں کچھ چیزیں ملی ہیں اور وہ خالق کائنات کا تصور آپ کو اسلام میں بھی ملا ہے. یہ فائنڈنگ آپ کی بالکل ٹھیک ہے, اس لیے کہ ہمارے یہ معافی چاہتا ہوں, میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہے. ہماری اسلام کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک ہی ریلیجن آیا ہے جس کا نام اسلام ہے. کرسچینٹی بھی وہی ہے, جوڈیزم بھی وہی ہے, ہندوازم بھی وہی ہے, وہی ایک ہی ہے. کیونکہ سارے جو پروفٹس ہیں جو ہندوستان میں آئے, جو یورپ میں آئے, افریقہ میں, جہاں کہیں بھی آئے, وہ ایک ہی پیغام لے کے آئے. تو آپ کی اسکرپچر کے اندر بہت کچھ ملے گا آپ کو ایسا جو اسلام سے بہت ریزمبلنس ہے اس میں. اب اسلام میں اور جو پہلے باقی کے جو اب ریلیجن بن گئے ہیں, ان میں فرق کیا ہے کہ جیسے ایک پروفٹ اسلام کا ایک ورژن لے کے آئے, اپنی قوم کے لیے لے کے آئے, انہی کے ساتھ کسی اور جگہ پہ دنیا میں ایک اور پروفٹ ہیں, وہ ایک اور لے کے آئے, ان کے بعد ایک اور آئے, تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اپڈیٹس آتی رہیں. پھر اسلام 1400 سال پہلے اپنے فائنل ورژن کے ساتھ کمپلیٹ ہو گیا. جو پہلے کے جتنے ورژنس تھے ہیں وہ بھی اسلام ہی, لیکن اس میں لوگوں نے اپنے عقل کے مطابق, کہیں پاور گریب کے لیے, کہیں پولیٹیکل وجہ سے, کہ ریلیجس پولیٹکس بھی ایک چیز میٹر کرتی ہے, تو لوگوں نے دوسرے لوگوں کو اپنا ایک طرح سے غلام بنانے کے لیے جو پاور سٹرکچرز ہیں وہ بنا دیے. کہیں پوپ ہو گیا کہ سیاہ سفید کا مالک وہ ہے, کہیں پنڈت ہو گئے کہ وہی آپ کو بتائیں گے کہ ریلیجن کیا ہے, کہیں ریبائز ہو گئے, کہیں کیسے کہیں کیسے. اسلام نے کہا کہ نہیں بھائی, ہر آدمی کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنا تعلق ہے. اسی
कलाम को लेकर, उसी मैसेज को लेकर आप किसी भी आलिम दीन को, किसी मौलवी, किसी मुफ्ती को आप चैलेंज कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। मुफ्ती दूसरे मुफ्ती को चैलेंज कर सकता है। तो ये तो एक रिजेम्बलेंस की चीज़ें हैं जो हमें नज़र आती हैं। यही वजह है कि आपकी किताबों में जगह जगह प्रोफेसाइज किया गया कि जो आखिरी एक रसूल होंगे वो कहाँ होंगे, उनकी मदर का नाम क्या होगा, उनके फादर का नाम क्या होगा, कैसे उनको अपने इलाकों से निकाला जाएगा, कैसे वो नॉर्थ में जाएंगे, अपने 10,000 साथियों के साथ वापस आएंगे, फिर अपना मुल्क फतह करेंगे। तो ये तो फाइनल प्रॉफिट के साथ ऐसे ही हुआ। मक्का से उनको निकाला गया, मजबूर किया गया, नॉर्थ में गए मदीना में, वहाँ पे 10,000 सहाबा के साथ वापस आते हैं, फिर मक्का फतह होता है। यानी कि आपको ये बहुत कुछ चीज़ें जो बच गई हैं, करप्शन की नज़र नहीं हुई, वो आपको मिलेगा। तो ये तो उसमें एक चीज़ है। दूसरा जो आपका सवाल है कि क्रिएटर क्या भूखा है कि उसकी इबादत की जाए, तो देखें दुनिया में दो तरह के काम होते हैं। एक होता है वो काम जो आप करते हैं तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा वो होता है कि आप किसी से काम कराते हैं तो उसमें आपका फ़ायदा है। अब मिसाल के तौर पे एक डेंटिस्ट है, वो जब किसी अपने मरीज़ से कहता है कि मुंह खोलो, मैंने तुम्हारे दांत चेक करने हैं, तो वो मुंह उसका डेंटिस्ट का क्या फ़ायदा है इसका बेचारे का। या कोई डॉक्टर है, वो किसी को कोई दवाई देता है और कहता है कि ये दवाई तुमने दिन में इतने दफ़ा खानी है, मैं बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर ने एक सेट ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है, मुझे बता रहा है कि सुबह क्या खाना है, शाम में क्या खाना है। अब इसमें डॉक्टर का क्या फ़ायदा हो रहा है? आप कह सकते हैं उसे फ़ीस मिली, लेकिन मैं ना जाता तो अर्न तो वो फिर भी कर रहा है, क्योंकि मेरी वजह से तो डॉक्टर नहीं है। लेकिन अब वो जितने काम मुझे कह रहा है वो मेरी बेहतरी के लिए कह रहा है। तो जो खालिक़े कायनात है वो तो इन बातों से बहुत बढ़ के है। अब उसने तख्लीक की है तो एक रिलेशनशिप कायम हुआ है। हर रिलेशन मैं माजरत चाहूंगा, तख्लीक का मतलब क्या होता है? क्रिएशन। अच्छा जी। अब उसने क्रिएट किया है तो एक रिलेशनशिप तो हो गया, एक क्रिएटर है और ये एक क्रीचर है या क्रिएशन है। तो हर रिलेशनशिप के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो इसमें ज़रूरी है कि जो बनाने वाला है और जो बना है उनके दरमियान ये रिलेशनशिप कायम हो कि जो बनाया गया है वो इबादत करे उसकी जिसने बनाया है, और वो सारे इबादत ही कर रहे हैं। क्योंकि कुरान ने जो इबादत का कॉन्सेप्ट दिया है ना, वो ये है कि जब हर चीज़ अपनी फितरत के मुताबिक काम कर रही है तो वो इबादत कर रही है। इंसान चूंकि बाकी चीज़ों से बहुत बढ़ के है, इसलिए इसकी इबादत भी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अब चांद अपनी फितरत के मुताबिक, अपनी नेचर के मुताबिक वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये उसकी इबादत है, क्योंकि वो अपने लोगों के ऊपर कायम है। वो अपने सर्कल के अंदर घूम रहा है तो ये उसकी इबादत है। और परिंदों का उड़ना ये उनकी इबादत है, दरियाओं का बहना ये उनकी इबादत है। कि कुदरत ने कवानीन तय कर दिए हैं, लॉज तय हो गए हैं। जब सब अपने अपने लॉज पे खड़े हुए हैं तो सबकी इबादत जारी है। इंसान को बड़ा था, इसको इख्तियार दिया कि चाहो तो ना भी करो, लेकिन हुक्म है कि करो, तो यही तुम्हारा टेस्ट है। यही काम हम दुनिया में करने आए हैं। इसलिए ये रिलेशनशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए ज़रूरी है कि एक इबादत करे और दूसरे की इबादत की जाए। अब मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। जी जी। आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि इंसान को छोड़ के जितनी भी अन्य जो क्रिएशन है, आपने पक्षियों का जिक्र किया, सूरज का किया, चांद का किया, उनकी जो रिस्पांसिबिलिटी दी गई थी वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सूर्य अपने समय पे निकलता है, डूबता है, पृथ्वी अपने हिसाब से चलती है, सारी की सारी क्रिएशन चलती है। जी। इंसान को आज तक ये पता ही नहीं चला कि एक्चुअल में उसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या तय की गई है। जहां तक मैं समझ पाया हूं वो आज तक इस गुमराहियत में है कि एक्चुअल में उसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है। हमारे यहाँ बड़ी क्लियर है, बड़ी नहीं, मेरी बात जी जी फरमाइए। देखो, मसला इस चीज का है कि जब चूंकि उसके अंदर अकल है, सोचने समझने की सलाहियत है, तो हर चीज में वो तर्क और वितर्क करता है। वो यूं ही किसी चीज को मान नहीं लेता है। जब वो संतुष्ट होता है तब उस चीज को मान लेता है, फिर वो करता है। जैसे आपने कहा कि सच बोलना चाहिए। अब मैं क्यों सच बोलूं, क्यों न बोलूं, हम इस पर तर्क करेंगे, लेकिन एक दिन अगर हमें इस बात का एहसास हो गया कि नहीं सच बोलना चाहिए,
तो फिर मैं उस चीज को अप्लीकेबल कर लूंगा अपनी जिंदगी में, मैं उसको उतार लूंगा कि हाँ अब मैं जिंदगी में सच ही बोलूंगा, क्योंकि मैं ये चीज जान गया हूँ कि सच बोलने के अपने बेनिफिट्स है। अच्छा, अगर कभी कभी अगर जैसे पिता ने अपने बच्चे से कहा देखो बेटा आग मत छुओ जल जाओगे, अब वो नहीं मानता है, लेकिन जिंदगी का एक वक्त ऐसा आता है कि जैसे वो आग को छू लेता है और जब पहली बार उसको जलने का एहसास होता है फिर वो जिंदगी में आग छूता नहीं है, क्योंकि अब उसको इस बात का एहसास हो गया कि नहीं जलना क्या होता है और जलने का स्वाद क्या होता है। सही बात। कुछ चीज ये होती है एक लर्निंग प्रोसेस, व्यक्ति अपनी गलतियां करता है और गलतियों से सीखता चला जाता है, और जिन जिन चीजों पे उसका यकीन बढ़ता चला जाता है उन चीज को मानता चला जाता है। दूसरे शब्दों में आप इसको ईमान लाना कह सकते हैं। मेरा इस बात पे ईमान है कि सच बोलना चाहिए, मेरा इस बात पे है कि किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, तमाम ऐसी तरह की चीजें। खालिके कायनात की जब बात आती है तो मेरा ईमान उसके ऊपर इसलिए दृढ़ नहीं हो पाता है कि हमने उसको कभी देखा नहीं, कभी उसको जाना नहीं, कभी उसको महसूस नहीं किया, जैसा दुनियावी चीजों के बारे में होता है, क्योंकि बाकी सारी चीजों को हम जान लेते हैं क्योंकि उनको जानना संभव है, लेकिन लिमिटेड से अनलिमिटेड को नहीं जाना जा सकता है। सनातन क्या कहता है कि जो हमारी मतलब जानने के जो सोर्सेज हैं उनको ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रिया कहते हैं। जैसे आंख है, नाक है, मुंह है, तमाम वो चीजें जिनसे हम किसी चीज को जानते हैं, और कर्म इंद्रिया मतलब वो चीजें जिनसे हम कोई कर्म करते हैं। तो हमारे ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रिया जिनके माध्यम से हम नॉलेज को गेन करते हैं उनकी एक लिमिटेशन है। और ईश्वर, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, जब मैं ईश्वर कहूंगा तो मैं ईश्वर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कहूंगा, जो मैं खुदा कहूंगा तो खुदा, बोथ आर द नॉट डिफरेंट थिंग, मतलब दोनों में अंतर है, दोनों सेम नहीं है। अब जब मैं ईश्वर की विशेषताओं के बारे में जानने की कोशिश करता हूं तो मैं अपनी लिमिटेड चीजों से जानने की कोशिश करता हूं। सही। एक कमरे की वायरिंग को मैं ढूंढता ढूंढता पहुंचा तो उसके मेन स्विच तक पहुंचा, लेकिन मैं ट्रांसफार्मर तक नहीं पहुंचा। ठीक, मेरी लिमिटेशन, अगर अब मेरे घर की बाउंड्री है तो मैं ट्रांसफार्मर के तार नहीं चेक कर सकता। तो मनुष्य के जानने की, सोचने समझने के लिए जो ज्ञानेंद्रियां कर्म, उनकी एक सीमा है। सनातन का स्क्रिप्चर क्या कहता है कि आप अपने लिमिटेड से अनलिमिटेड को नहीं जान सकते हैं। सही। तो फिर मैं करूं क्या? अब वहां पे हमारे यहाँ कर्म का सिद्धांत आता है। श्रीमद् भागवत गीता इसी चीज को स्टेब्लिश करती है कि आपकी इख्तियार में क्या क्या चीजें आप पहले समझ लीजिए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ आप कर क्या सकते हैं। वहां पे कर्म का सिद्धांत आता है। कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ कर्म करने की ही सलाहियत है। सही। उसकी मजबूरी ये है केसर राजा जी कि बिना कर्म किए एक मिनट रह नहीं सकता है, बाउंडेड है। जैसे पंखा एक निश्चित दिशा में गति कर सकता है, उसको बना, उसकी प्रोग्रामिंग करके छोड़ दी गई है। सीलिंग फैन है, वो अगर क्लॉकवाइज चला तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलेगा। सही। तो इंसान को यूं इस कदर प्रोग्राम किया गया हो कि हर पल हर वक्त कुछ ना कुछ करेगा। अब उसको जेहन दिया गया तो वो दो चीजें डिसाइड करेगा, या तो अच्छे कर्म करेगा या तो बुरे कर्म करेगा। अगर अच्छे कर्म करेगा तो उसका परिणाम अच्छा होगा, बुरे करेगा तो बुरा होगा। और अच्छे बुरे का जो डिसीजन है ये वही करेगा, उसको डिसीजन मेकिंग का भी इख्तियार है कि वो खुद सोचे कि मुझे कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और पूरी जिंदगी जो कर्म करेगा इसी के आधार पर उसका फैसला होगा। और अंततोगत्वा जो ये कर्म का सिद्धांत है, कर्म फल का सिद्धांत इसको बोलते हैं सनातन में, कि प्रत्येक कर्म का कर्म फल होता है। लेकिन इससे और आगे बढ़कर के गीता कहती है कि एक समय ऐसा आता है कि आप कोई काम करते हैं किसी लालच के कारण करते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है कि मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो जाऊं, तो पढ़ता है, पास हो जाता है। चोर कहता है, प्लानिंग करता है, बहुत मेहनत करता है कि आज मैं ऐसी डकैती डालूंगा, पूरा बैंक लूट लूंगा, वो भी कभी कभी अपने स्ट्रेटजी में सफल होता है क्योंकि कर्म उसने भी किया। अब अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम होगा। एक ऐसा लेवल आता है जब हम कर्मफल से ऊपर उठ के काम करते हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के काम करते हैं। कोई बूढ़ा रास्ते में फंसा हुआ है, हम उसको पार करा देते हैं। कोई भूखा, हम उसको भोजन करा देते हैं। बदले में हम कुछ नहीं चाहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता थर्ड कैटेगरी बनाती है जिसको निष्काम कर्म कहते हैं। आप अपना कर्तव्य समझ करके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कोई काम करें और बदले में कुछ न चाहें। मैंने कोई काम किया, मैंने भूखों को भोजन कराया, मैं नहीं चाहता कि बदले में वो भी हमें भोजन कराएं। आप एक डॉक्टर हैं, आपने हजारों मरीजों का इलाज किया। मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। लेक्चर वाला थीम नहीं चल रहा है, आपने अकेले तो बात करनी नहीं है ना। मैं आपको 10 मिनट्स दे चुकी हूँ। अब आप आ जाए कंपैरिजन पे, और कंपैरिजन में हमेशा एक बात करके फौरन क्वेश्चन रखा जाता है कि अब आप बताइए कि मैंने सही कंपैरिजन किया कि नहीं। तो प्लीज अब आ जाइए मेन पॉइंट पे, कंपैरिजन करके इस बात को खत्म करें, लेक्चर नहीं दें प्लीज। आपको लेक्चर क्यों लग रहा है? अगर किसी सब्जेक्ट पे बात हो रही तो लेक्चर तो हो नहीं रहा है।
بھائی اگر آپ اس پہ آپ اتفاق نہیں رکھتے آپ تو آپ مجھ نہ سے رکھیں اس بات پہ اتفاق. بحث کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ مجھے اس بات پہ بحث کرنا تو چاہتے ہیں تو آئیے ٹاپک پہ بات نہیں، کر میں آپ لیتے سے ہیں، بحث نہیں کرنا لیکن چاہ رہا ہوں، میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں بحث ہی نہیں کر رہا ہوں اس سے. نہیں، تو یہ ہے کرم کا سدھانت کشر جی. اب اگر میں اس چیز کو کمپیئر کرتا ہوں اسلام سے تو وہاں پہ کیا سدھانت ہے، وہاں پہ کیا تقریباً قرآن میں وہی کیا ہے، فرمایا گیا ہے جی. تقریباً وہی ہے اور جو یہ آپ نے لاسٹ بات ہے، اب کہا. اس کے بعد میں کوئٹ کروں گا. اسلام کیا دیکھیں کہتا ہے جی. تقریباً وہی ہے جو آپ نے کہا. اچھا مثال کے طور پہ سورہ شمس میں ہے جی جی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اچھے کام کرے یا برے کرے. آپشن اس کے پاس ہے. جو اچھے کام کرے گا اس کو اچھا نتیجہ ملے گا، کامیاب ہوگا. جو برے کام کرے گا اس کا نتیجہ برا اس کو ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے کہ تم اپنے حصے کے کام کرتے رہو. تمہیں گارنٹی دی جاتی ہے کہ تم اپنے حصے کے کام کرو گے تو ایک باریک سے باریک چیز جو آپ امیجن کر سکتے ہیں اس کے بھی بدلے میں آپ کو اس کا ریوارڈ ضرور ملے گا. یہ گارنٹی ہے، وہ آپ کو ضرور ملے گا. آپ غلط کرو گے، اپنی غلطی کو مانو گے، اس کی معافی مانگو گے، آپ کو معافی ملے گی. یہ بھی گارنٹی ہے مرنے سے پہلے ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ پہ اور حدیث میں بھی ہے ایسا، آپ کو الٹیمیٹ جو کامیابی ہے قرآن کے مطابق وہ یہ ہے کہ انسان سے اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ اے نفس مطمئنہ، یعنی کہ اے being which has attained tranquility and satisfaction, gratification، کہ اے ایسی جان جو اطمینان والی ہے، تو پلٹ اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہوا. تو وہ اعمال ہیں، آپ کے ڈیڈز ہیں جو آپ کرتے رہتے ہیں. دیر کمز اے پوائنٹ جہاں پہ آپ اس پوائنٹ کو اچیو کر لیتے ہیں. جہاں تک مقصد کا تعلق ہے، سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑی کلیئرلی کہی ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بغیر مقصد کے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ کہ تمہیں لوٹ کے میری طرف نہیں آنا، یعنی کہ مقصد بھی ہے اور اس مقصد کا حساب بھی دینا ہے. اب وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں، دریاؤں اور یہ بڑی بڑی مخلوقات جو ہیں ان کو یہ ڈیوٹی نہیں دی، ایونچولی یہ ڈیوٹی نہیں دی کہ آپ دنیا میں رب کی خلافت کو قائم کریں، رب کے نظام کو قائم کریں. اب رب کا نظام کیا ہے؟ کہیں چوری نہیں ہونی چاہیے، کسی کا حق نہیں کھایا جانا چاہیے، کہ لوگوں کو ایک ایسا معاشرہ لوگ بنائیں، ایسی سوسائٹی بنائیں جس کی بیس جسٹس پہ ہونی چاہیے. معاشرہ مطلب سوسائٹی، ہاں جی، اچھا کہ آئیڈیل سوسائٹی یہاں پہ ایک ایسی ہمیں چاہیے کہ جس کی بیس ہونی چاہیے جسٹس پہ. یہ رب کا نظام ہے، یہ مقصد ہے انسان کا اس دنیا میں آ کے اس نے اسٹیبلش کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حساب لینا ہے. اس کے اندر پھر عبادات ہیں، پھر باقی چیزیں جو اس کو سپورٹ کرتی ہیں، یہ سارے کا سارا. اب یہاں تک تو ہمارا اتفاق ہے. اور آپ نے ایک چیز کہی کہ اتفاق مطلب سہمتی، جی اتفاق، ہاں ہم یعنی ایگری کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، ایگری کریں بالکل. ٹھیک. تو میں نے کہا نا کہ آپ کا بھی وہی ہے جو ہمارا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے اینڈ کا جو پورشن ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے کہ اس میں کرپشن ممکن نہیں ہے. آپ اپنی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو کلیئرلی پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر مین میڈ کہیں نہ کہیں کریٹیوٹی ضرور ہوئی ہے کہ وہ آپس میں میچ نہیں کر رہی ہیں، ایک کچھ کہہ رہی ہے دوسری کچھ. تو وہ میں نے کہا کہ وہ ایک ہسٹری ہے، بائبل کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ساتھ بھی ایسا ہوا. تو ہے تو سارا پیچھے ایک ہی، بس لوکل لیول پہ اس میں جو چینجنگز آتی رہی ہیں اس نے کام بہت خراب کیا. تو یہاں تک تو ہمارا وہ چیزیں آدمی فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہے اور سمے کے ساتھ جو چیزیں ارریلیونٹ ہیں ان کے اوپر وچار کر سکتا ہے. سوسائٹی کی بہتری کے لیے جو چیزیں ہیں آدمی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، کام کر سکتا ہے. اتنی سوتنتا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارا ٹاپک چینج ہو جائے گا. میں آپ کی بات کا میں رسپونڈ کر دوں کہ ایک چیز آپ نے کہی کہ خدا جو ہے وہ نظر نہیں آتا. then the question is کہ کیا نظر آنا یا لمیٹڈ کا یا لمیٹڈ کا انلمیٹڈ کو سمجھ لینا، کیا یہ نیسیسری ریکوائرمنٹ ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ بہت ہی مہتوپورن پرشن ہے.
जहां तक आप ईमान लाने की बात करते हैं या क्रिएटर के ऊपर एतबार करने की बात करते हैं, व्यक्ति के अंदर इतनी सलाहियत है कि वो किसी भी चीज को एक बार चेक जरूर करना चाहता है। छोटी से छोटी चीज, अगर कोई आप इक्विपमेंट भी खरीदने जाते हैं तो आप उसको चेक करते हैं। सबूत एक और चीज है, देखें तो सबूत एक डेफिनेटली व्यक्ति जानना तो जरूर चाहता है कि जिस खालिक कायनात पे हम एतबार करने जा रहे हैं वो है क्या, उसकी क्वालिटीज क्या हैं, हम उसका एतबार करें तो क्यों करें। क्वालिटीज का तो इशू ही नहीं है ना, क्वालिटीज तो जगह जगह अल्लाह ताला ने बताई है, अपनी पर्सनल क्वालिटीज बताई हैं कि उसको मौत नहीं है, नींद नहीं है, उसकी औलाद नहीं है, वो लिमिटेड नहीं है। फिर अपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं कि वो मुआफ़ करने वाला है, वो हिसाब लेने वाला है, वो चीज़ों को तवाज़न के साथ बनाने वाला है, एंड सो फोर्थ। 99 सिफाती नाम है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो तो इशू नहीं है, तो आपको जगह जगह मिल जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि क्या किसी चीज़ को ठीक या किसी चीज़ के होने के लिए उसका देखा जाना क्या ज़रूरी है? एंड द सिंपल आंसर इज़ नो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप ज़िंदगी में आपने कितनी चीज़ें कहीं कि हम बनाते हैं, करते हैं, उसके पीछे अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं कभी भी आपकी अकल नहीं देख सकता, आप मेरी अकल नहीं देख सकते, बिल्कुल आप मेरी जहानत, मेरा इंटेलेक्ट नहीं देख सकते, मैं आपका नहीं देख सकता। तो एविडेंस क्या है कि आप इंटेलिजेंट आदमी हैं? जो चीज़ आपने बनाई है वो उस चीज़ का एविडेंस है कि इसके पीछे ये इंटेलिजेंस है। मैं इंटेलिजेंस नहीं देख रहा, इंटेलिजेंस के रिजल्ट को देख रहा हूँ। तो जब खुदा की बात आती है तो हम यूनिवर्स को देखते हैं, हम अपने इकोसिस्टम को देखते हैं, हम इसकी फाइन ट्यूनिंग को देखते हैं, हम इंसानी जिस्म के अंदर एक एक चीज़ इतने प्रिसीजन के हिसाब से चल रही है, हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं। वहाँ से हमें फिर आइडिया होता है कि इसके पीछे कोई एक ऐसी ज़ात है। अब मैं आपसे बड़ा क्या, और आपसे मैं एक्सपेक्ट भी यही करूँगा कि जब सब्जेक्ट मैटर चेंज हो जाता है तो फिर नेचर ऑफ एविडेंस भी चेंज हो जाता है। मैं आपके सामने एक फिजिकल एंटिटी का इजहार करूं तो आपसे यही मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उसका फिजिकल सबूत ही मांगें। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने आपके लिए एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है, तो मोबाइल फ़ोन तो एक फिजिकल एंटिटी है। सिंपल मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे दिखाओ भाई मोबाइल फ़ोन, मैं देखना चाहता हूँ। बिल्कुल लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि विष्णु साहब मेरे दिल में बड़ी इज्जत है आपके लिए, तो मैं आपसे कभी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि कैसर अपने दिल में हाथ डालो और वो इज्जत मुझे निकाल के दिखाओ। अब उस इज्जत का एविडेंस मुझे अपने बिहेवियर से देना होगा, डेफिनेटली उसका एक आउटपुट देना होगा मुझे। तो हम अल्लाह ताला के बारे में तो कहते नहीं कि वो मटीरियल एंटिटी है कि हम उसको देखेंगे तो ही बात होगी। हमें ये पता है कि ये जो कुछ कायनात में, यूनिवर्स में चल रहा है, इसके पीछे खालिक़े कायनात ना हो तो ये कायनात भी ना हो, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट एविडेंस। और हमारी इंटेलेक्ट को सामने रखते हुए यही एविडेंस काफ़ी है। आखिरी बात, आपने कहा कि जो अनलिमिटेड है वो लिमिटेड को नहीं समझ सकता। यू नो देयर यूज्ड टू बी अ टाइम, हमारे भी इस्लाम के बड़े बड़े मुफक्रीन ने इस पे बात की, गज़ाली ने की, इकबाल ने की, लेकिन मैं इस आर्गूमेंट को इररेलेवेंट समझता हूँ, इसलिए कि भाई जब आप लिमिटेड होते हैं तो आपका किसी चीज़ के बारे में जान लेना एक चीज़ है और उस चीज़ को फुली कॉम्प्रीहेंड कर लेना एक और चीज़ है। लेकिन अगर आप उसे फुली कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते तो उसका ये इस चीज़ का सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर लिमिटेशंस हैं। अब मियाँ बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ 40-40, 50-50 साल इकट्ठे रहते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं, उनके बच्चों के बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन नेवर हैज़ इट बीन एवर वंस इन द ह्यूमन हिस्ट्री कि जब किसी हस्बैंड ने कहा हो मरते वक्त कि मैं अपनी बीवी को मुकम्मल तौर पे समझता हूँ, या बीवी ने कहा हो कि मैं अपने हस्बैंड को मुकम्मल तौर पे समझती हूँ, या बहन भाइयों ने कहा हो कि मैं एब्सोल्युटली, यानी कि एक माँ एक बाप की औलाद है, वो ये दावा नहीं कर सकते। 100 साल इकट्ठे रहने के बाद भी नहीं कर सकते कि हम एक दूसरे को मुकम्मल तौर पे समझ गए हैं। There is always a degree of uncertainty, which is very exciting. As a human being, I'm very excited about that uncertainty. लेकिन ये इस चीज़ का सबूत नहीं है कि मेरे बहन भाई नहीं हैं। ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं होता है इसका। और ये ज़रूरी भी है कि जो रिलेशनशिप हमारा है उसमें एक अनलिमिटेड है और एक लिमिटेड है। अगर लिमिटेड अनलिमिटेड को पूरी तौर से समझ गया तो फिर अनलिमिटेड का क्या रहा और ये लिमिटेड क्या रहा। यहाँ पे दो चीजें आती हैं कैसर जी, और यहाँ पे दो विष्णु भाई बस मेरे ख्याल से क्योंकि 20 मिनट्स से अब हम किसी एक कॉलर को भी टाइम नहीं देते। नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं इजाजत चाहता हूँ। कैसर भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ी अच्छी चर्चा आपके साथ रही। इसके आगे की चर्चा फिर हम अगली बार करेंगे, और एक दो क्वेश्चन में लेके आऊंगा आपके सामने, और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इन चीजों को एक्सप्लेन करें।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।